Assalamu alaikum and welcome to Raheen's page after a very long time. Today I'm here with a session with Shams Arifin. Bahut actively he's watching my interviews and watching the sessions, and now he always comments on what are his thoughts, and I've interviewed him and he's a great man to learn from. आज हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ हैं खुद ही। तो अब खुद ही बिकॉज मुझे पता है मैं 12 साल की हूँ, तो मेरी खुद ही बहुत डिफरेंट होगी, शम्स की बहुत खुद ही डिफरेंट बहुत खुद ही डिफरेंट होगी। तो आज हम अपनी खुद ही को बुलंद करते हैं और लेट्स टेक a start from here. So let's please introduce ourselves and then kickstart this session, right? Okay, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शम्सुल आरिफीन है पूरा नाम, और I have been a motivational speaker for quite some time, and अभी मैं मिनियापोलिस US में रहता हूँ, और I am involved in leadership training and transformational training in America. Or I would love to give a talk or talk about some of the topics जो कि हमारे जो है related हैं, और I'm very grateful to Raheen for doing such a wonderful job. She's a fabulous person and a great person at her age. She is commendable. I have no word. I'm speechless. So she is like amazing soul, and I know that she has a long way to go, and she's going to achieve a whole lot. So having said all this, I would say that brings us to the topic that we are going to talk about today, is the topic of खुदी। और जैसे मैंने अभी रहीम की बात की, तो खुदी is like it's like something that is like a search of one's own self. The concept of खुदी starts, अगर हम हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कॉन्सेप्ट में बात करें, तो हजरत अल्लामा इकबाल ने खुदी को 3 एरियाज में डिफाइन किया है। और जो पहला एरिया है, जो बिगिनिंग ऑफ सेल्फ है खुदी का, उसमें जैसे हजरत अल्लामा इकबाल का शेर है कि खोल आंख समी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इकबाल का कि you are like consciousness, getting into your consciousness, and you are in a state of being awake, और आप डिस्कवर करते हो कि अच्छा, oh, this is me, this is I am present right now, I am living in the moment. And that's living in the moment is the beginning of oneself. That is the start of a person's khudi. And that is the realization जो हजरत अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि वो जो यंगस्टर हैं, जैसे अभी रहीम की मैं बात कर रहा था, तो she has come to that kind of concept that she has started, at an early age, looking at, opening her eyes and looking at what's going on, and she's talking to, the people who are quite, up in age, or, for her. और अल्लामा इकबाल इसके बारे में कहते हैं कि जो है there is going to be a time जब बच्चे जो हैं वो बड़ों के उस्ताद होंगे। तो I think this is the time that we are talking about, कि जब कोई शख्स as a beginner, as a starter, अपनी खुदी को अंडरस्टैंड करता है, ये करती हैं, तो वो रियलाइज करती हैं कि who he or she is. So that is the first concept of खुदी, कि आपने अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूं, who am I, where am I going, what's going on with me, मैं आया कहां से हूं, मैंने जाना कहां है। You understand? And when you are talking about कि okay, मैं अब कहां पे हूं, कौन से रास्ते में हूं, कौन सी दुनिया में हूं, you know,
जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा। आहो मकामात मकामात आहो फुगा और भी हैं. So there's so much that is like you have to go there. The world is not small. The thinking is not small. It is just that our realization and understanding of who we are, where we are, and what we are doing, and where we're going. So this is the very first part of Khudi. और जब हम इस कॉन्सेप्ट से आगे निकलते हैं तो देयर इज अ सोल दैट इज कॉल्ड अ रियलाइज्ड सोल. कोई भी जो रूह है, जब वो रियलाइज्ड हो जाती है तो फिर वो एक डिफरेंट उसमें मकाम पे चली जाती है. और हजरत अल्लामा इकबाल की अगर बात करें तो उनके शायरी के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, और एक इश्क. जैसे वो कहते हैं कि इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क के मिजराब से नगमतारे हयात, इश्क नूरे हयात, इश्क नारे हयात, ए हर में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दुआम जिसमें नहीं रफ्तबूद. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी जो है, आफ्टर सम टाइम इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इश्क. और इश्क के अंदर जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो खुदी जो है वो इश्क बन जाती है. और जब वो इश्क बन जाती है, राइट, तो दैट मीन्स वो एक डिवाइन खुदा की जात के अंदर लॉस्ट हो जाती है. तो वो उसके अंदर, वो उसका पार्ट बन जाती है. तो इसी चीज को अल्लामा इकबाल ने कहा, उठा साकिया पर्दा इस राज से. उठा साकिया. राहीन, आपको आवाज आ रही है? आर यू विद मी? आवाज आ रही है मुझे, मैं म्यूटेड थी सिर्फ, मैं सभी सुन अच्छा रही हूँ. अच्छा आपको कितने शेर अशआर याद हैं? अच्छा अच्छा. तो उठा साकिया पर्दा इस राज से, तो लड़ा दे ममोले को शहबाज से. तो अब ममोला जो है इज ए स्मॉल बर्ड. तो जब ये हजरत अल्लामा इकबाल बात कर रहे हैं यजदा की, यानी अल्लाह सुब्हान ताला की, और इंसान एक ममोला है, एक स्मॉल बर्ड है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटा बर्ड जो है वो एक शाहीन या शहबाज के साथ लड़े? तो कैसे वो लड़ सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट ये है, इसको मौलाना रूम ने भी कहा है कि एक इंसान जो है, एक कतरा समंदर के अंदर या समंदर कतरे के अंदर. तो जब हम खुदी की बात करते हैं तो ये समंदर है जो एक इंसान के अंदर है. यानी एवरीथिंग इज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, देयर इज नथिंग आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो इसके बारे में एक बड़ा ही खूबसूरत अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है. यानी नशेमन मीन्स के हाउस, घर. यानी खुदी जो है वो इंसान के दिल में है, राइट. फलक जिस जिस तरह आंख के तिल में है. अब जैसे आई, प्यूपल है आई का, राइट, वो कितना छोटा होता है, लेकिन आसमान कितना बड़ा है. तो अगर आपकी आंख के प्यूपल के अंदर पूरा आसमान छाया हुआ है और वो उसको पूरा वो कवर करता है, इसी तरह खुदी जो है इट्स लाइक ए समंदर जो कि इंसान के दिल के अंदर है. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो हजरत अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ये जो सेकंड स्टेप ऑफ खुदी है, और फिर उसके बाद जब इंसान इश्क की उस स्टेज पे पहुंच जाता है तो हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आलम है फकत मोमिन जाबाज की महरास. आलम है
फकत मोमिन जाबाज की मेरास मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। यानी ये जो आलम है, ये दुनिया है, ये हमारी हमारी मिरास है। दिस इज लाइक इट्स गिवन टू अस एज अ प्लेस, दिस इज आवर प्लेस। और कोई ऐसा शख्स जो मोमिन हो नहीं सकता जो कि जिसको पूरे दुनिया और सात आसमान और सात जमीन का पता ना हो कि उसमें क्या हो रहा है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी इज सो बियॉन्ड। एंड बहुत सारे लोग जो हैं इस खुदी को, जैसे एक शेर में हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा, हो अगर खुद न करो खुद करो खुदगीर खुदी, हो अगर खुद न करो खुद करो खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। यानी कैन यू बिलीव दैट? सो द डेथ इज नथिंग, डेथ इज समथिंग दैट इज लाइक passing। और इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सूफिया कराम जो थे, दे काइंड ऑफ लिव्ड इन दैट। सो ये मैं एक चीज आपको बताना चाहता था कि खुदी का जो कॉन्सेप्ट इकबाल का है, और जो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत इकबाल की नज़म भी है कि खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये देखेंगे इस दौर में हम कितने लॉस्ट हैं। तो इकबाल हमें ये बता रहे हैं कि ये दौर जो है, इस दौर में हम अपने इब्राहिम को तलाश कर रहे हैं। अब हम अपने इब्राहिम को तलाश कर रहे हैं। वी डोंट नो हु इज आवर गाइड। हमें विकिपीडिया हमारा गाइड है, या हमारा मैसेंजर गाइड है, या हमारा फेसबुक गाइड है? हु इज आवर गाइड? वेयर आर वी सीकिंग द इंफॉर्मेशन? वेयर आर वी गेटिंग द नॉलेज? And when we are getting this knowledge, how authentic this knowledge is? Or is this knowledge that is going to lead us to the actual path that we need to take? या ये हमें कहीं और लेके जा रहा है? सो खुदी का कॉन्सेप्ट इज लाइक इज अपने अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। अपने मन में, तो मन क्या है? मन इज द हार्ट। सो अगर खुदी अवेकन है, अगर सोल अवेकन है, तो फिर इंसान का जो हार्ट है, वो फिर उसके अंदर वो चीज पैदा होती है। और ये कॉन्सेप्ट आता है when you are following a master, a Sufi master. And a Sufi master is very important, या कोई भी उस्ताद बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि किसी इंसान के हार्ट को जिंदा करे। तो खुदी क्या है? इट इज द लिविंग हार्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डेड हार्ट। सो अ डेड हार्ट एंड अ लाइव हार्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। राहीन, आपको कुछ समझ आ रही है? मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, तो it's नहीं बातें exactly करनी। my definition of खुदी, because मैं actually 3 stages में believe करती हूँ. That is first, because खुदी is like a part of your ruh. That is what I believe. That knows that there are, because हम भी तो functions कर सकते हैं ना, like अब मेरे घर में एक microwave oven है. It can also do a lot of, मतलब उसके 6 points of heat है, वो defrost कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसके साथ मैनुअल पड़ा हुआ है, और वो मैनुअल बताता है कि ये क्या क्या कर सकता है और वो कैसे कैसे कर सकता है, राइट? हम इंसान हैं, जी और जी। दैट पार्ट ऑफ दैट सुपर नेचुरल पार्ट ऑफ आवर रूह, वो जो खुदी है, द फर्स्ट पार्ट, again, it knows the function. But in order to do those functions, first you need the realization of your true potential, what you can do. And then you will do what you can do already. राइट। So that is how it all begins.
Okay. Second, the I just functions, want to and third, clarify. being Yeah, lost. right. I want to clarify this a little bit. Hmm. खुदी is, जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ खुदी जो है वो रियलाइजेशन से है और सेल्फ रियलाइजेशन से है कि जब इंसान सोचना शुरू करता है कि मैं कौन हूं. दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और होता ये है कि वो जो खुदी है इट इज बियॉन्ड इंसान की रूह. रूह जो है, रूह एक, रूह जो है अमर है. यानी रूह इज द ऑर्डर ऑफ गॉड. रूह जो है अल्लाह ताला का एक हुक्म है जो हमारे अंदर है और उसकी वजह से ही हम बोल रहे हैं. ये जो हम बोल रहे हैं ये रूह है जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं. और जब ये रूह नहीं होती तो हम बात नहीं कर सकते. अब इकबाल कहते हैं कि जो रूह है ये तो एक अमर है ही है, लेकिन जो खुदी है ये रूह से बियॉन्ड है. यानी इस रूह को वो इस लेवल पे ले जाती है कि वो खुदा के पास ले जाती है उसको, और वो इंसान खुदा की जुबान में बात करता है. तो तभी वो कह रहे हैं कि मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है. यानी वो मोमिन नहीं हो सकता जिसको अपने आने वाले वक्त का ना पता हो, आसमान का ना पता हो, जमीन का ना पता हो. यानी कैन यू इमेजिन व्हाट इकबाल इज टॉकिंग अबाउट. एक आम आदमी की रूह तो बिल्कुल कोई खास बात नहीं पहचान सकती, लेकिन जब ये खुद ही बेदार होती है, राइट, तो फिर इंसान उसमें, और उसमें जो है खुद ही जो है वो इश्क के मकाम पे पहुंच जाती है. और जब वो इश्क के मकाम पे पहुंच जाती है तो फिर इंसान जो है वो इस मकाम पे होता है कि फिर वो अपनी उसकी बात नहीं होती. यानी जो भी बात होती है वो अल्लाह की जात से होती है. यानी वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता. Yeah. समझ आई? Yeah. जी. Now, कहते हैं ना, conversation is kind of changing into something else. But I feel like, ये is something, because, again, now khudi was also defined कि मतलब, imagine there's nothing else bigger than मतलब कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. अब मतलब उससे Exactly. बड़ी तो कोई चीज नहीं होती ना. I was just coming to that point. अब आप देखिए कि खुदा बंदे से कैसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. और क्या खुदा बंदों से पूछता है कि तेरी रजा क्या है? बिल्कुल पूछता है. बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला, जैसे कुरान मजीद में हमारे प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम सल्लल्लाहु के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि आपने मुंह से कुछ नहीं कहा और यू आर लुकिंग इनटू द स्काई कि मैं किबला जो है वो चेंज कर दूं. तो जो आप सोच रहे हैं आई एम गोइंग टू डू दैट. तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले जो यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे वो खाना काबा की तरफ कर दी. यू फॉलो दैट? सो खुदा ने खुद बंदे से पूछा और उस बंदे को बताया कि ठीक है, आई नो व्हाट इज इन योर हार्ट एंड आई विल डू व्हाट यू लाइक टू डू. यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल. and I feel like is के अब ये तो of course थोड़ा सा like एक metaphorical sense में हो गया, but again it does mean कि मतलब अगर मेरा कुछ specifically कहीं जाने का दिल चाह रहा है तो maybe like I get invited to that place, or my dad has to go there for work, or my mom has to go there for work, so like उधर जाना किसी तरीके से होना. So I feel like we should consider it sometimes like a message कि what you think is going to be done as like तब तक जब तक मतलब it is good for you, and not just for now but in a long time,
thing. What if, our car gets hurt or something? But anything could happen, right? So I feel like we should always think open-mindedly when thinking of that. Right. So open-minded is something that is very important. But जो हम बात कर रहे हैं, the concept of खुदी की जो बात कर रहे हैं, it's a very deeper concept. It's not a very Yeah. ordinary concept. Uh, खुदी Yes. वो शहर है, खुदी वो शहर है जिसका कोई किनारा नहीं. यानी खुदी is like that's the morning, that is the morning जिसका कोई end नहीं है, right? अब जैसे Hmm. इकबाल कहते हैं खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं. खैरत क्या है? अकल. अकल क्या करती है? आप देखें आम लेवल पे हमारी जो अकल है वो हमेशा इज लुकिंग फॉर सम न्यूज, Yeah. इज लुकिंग फॉर सम हिस्टोरिक इवेंट्स. सो वो कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी पीपल दे टॉक अबाउट इवेंट्स, mediocre people they talk about history, and the great minds they're silent. So Iqbal कहते हैं खैरत, Silent. yes, they don't speak. So, and when they speak, they mean something. They mean something very deeper, and they mean something that is very important. तो वो कहते हैं कि जो अकल है, अकल दुनिया के लिए है, राइट? खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं. यानी खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. सो इस्तराब इज लाइक देयर आर नो वेव्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. जैसे राहीन की लाइफ के अंदर बहुत सारी वेव्स चल रही है ना. अच्छा, सुबह ये करना है, रात को ये करना है, 12 at night ये काम करना है. So this is something that is like you started something and you are moving on some level where ये आपके अंदर से एक motivational चीज आ रही. It is steering you towards achieving something bigger. You started very early on. तो मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर कहता हूं कि do you want to get the rewards later, or you want to get the rewards right now? क्या आपको रिवॉर्ड्स अभी चाहिए या बाद में चाहिए? और अगर अभी आपको चाहिए तो आप एंजॉय करें, और अगर बाद में चाहिए, so that's the best way to do, because now that's when you're working towards it, that you are earning. अभी आप देखिए ना what you are doing right now. You have no idea what you're doing right now. So you're learning a lot of stuff. You're getting to know a lot of people. You're getting and accumulating a lot of knowledge. Right? And then there comes a time, अभी आप देखें, आप मुझे वो बता रही थी कि आप you have come in like 25 people. अभी आप पाकिस्तान में 25 people में है. कुछ दिनों के बाद आप मुझे दिखाएंगी कि पूरी दुनिया में मैं 25 लोगों में आ गई हूँ. फिर आप मुझे बताएंगी कि पूरी दुनिया में मैं नंबर 1 पे आ गई हूँ. So that is, yeah, there is, I mean, where it's like मेरे टीचर कहते थे कि टॉप सीट इज ऑलवेज वैकेंट. टॉप सीट क्या है? वैकेंट होती है, कोई भी जा सकता है ऊपर, खाली होती है ना ऊपर. द बॉटम इज क्राउडेड, टॉप इज एम्प्टी. टॉप पे तो कंपटीशन ही कोई नहीं है. समझ आ रही रही? टॉप पे Yes, कोई that's right. कंपटीशन नहीं. It is the bottom that's like competition. So when you're competing people, you're competing at on the ground level. But when you're going up, you're not competing. You're just going up. And you're making your own space. And you're making your own position.
and that's what is going on, and that's what the concept of khudi is we are talking about. That when you or a person becomes realized soul, and that realized soul achieves, जिसको हम कहते हैं no limits, no boundaries. So there are no boundaries for a person who achieves that level. So I would like to take some of the questions. If people have some of the questions, आप देखें किसी का कोई सवाल है तो पूछें उनसे, ताकि हम उसके बारे में उनको बता सकें. So abhi tak's like there was Rizwan Akram who asked you what is the topic and who's the guest. So Shams Arifin unka naam likha hua hai, and our topic is khudi as yet, and then well, we do not have any more questions, not at all. Okay. It's just a lot of people joining and then going and then joining and going. So अब जैसे इकबाल कहते हैं कि ये सहर जो कभी फरदा है, कभी है इमरोज, नहीं मालूम होती है कहां से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदाए मोमिन की अज़ा से पैदा. तो मोमिन की अजान का मतलब है कॉल. So giving a call to the people, call to one's own self, and realizing one own self. So इंसान के अंदर सब कुछ है. आप समझे? आप जैसे आपने वो शेर पढ़ा कि खुदी को कर बुलंद इतना, यानी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. You understand? So there comes a time when people reach to that level. लेकिन क्या आपने, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं पढ़ा और आपने शायद साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें एक थ्योरी है जिसमें हम कहते हैं अब्राहम मैस्लो, उसने एक थ्योरी ऑफ हायरार्की पेश की थी. सो आई वांट यू टू, व्हेन यू काइंड ऑफ get some time and just do a little bit of research, और उसमें अब्राहम मैस्लो की थियरी को आप देखिएगा और उसमें थियरी ऑफ हायरार्की को पढ़िएगा, जिसमें वो बताते हैं कि इंसान की जो है वो 5 टाइप की डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो नीड्स होती हैं, सर्वाइवल नीड्स होती हैं, उसके बाद उनकी एस्टीम नीड्स होती हैं, और उसके बाद फिर एनलाइटनमेंट होती है, यानी a stage where a person is not accepting anything or taking anything from anyone, but reaches to a stage of nirvana. That is the highest level of achievement. Now ये nirvana जो है, ये बिल गेट्स को भी हो सकता है, you know, in terms of monetary, right? तो उसने अपनी खुदी को कहाँ यूज किया? At the final stage, like collecting the money. किसी और शख्स ने कोई कंट्रीब्यूशन किया, उसने उस काम के लिए किया. लेकिन मुसलमान के लिए खुदी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. मुसलमान के लिए खुदी का कॉन्सेप्ट इज व्हेन अ पर्सन अचीव्स टू दैट लेवल जहां पे खुदा बंदे से वो खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. yeah, and I feel like इसके जहां तक मैंने अभी सुना है ये सिर्फ, आई एम नॉट इवन श्योर, बिकॉज यूट्यूब पे जो इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशली दोज काइंड ऑफ वीडियोस दैट कोई मतलब चैनल हो जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो, या फिर not many people are following there, it's sometimes you could feel कि भाई maybe the information is not correct, or you have your own doubts, शक्को शुबात होते हैं आपके. लेकिन तो उधर मैंने सुना था कि पहले it used to be like the word khudi was like because self, like only self, focusing on yourself, khudi होता था like as a negative connotation में था.
उन्होंने जी फिर इसको ईगो like पे। kind of convert किया था into a the good sense, like a positive जी जी word. एक्चुअली कन्वर्ट तो इस सेंस में किसी ने भी नहीं किया। असल में कॉन्सेप्ट जो था, जैसे लाइक हम कहते हैं कि खुद ही, यार तुम खुद ही काम करते हो, यार तुम खुद ही, तो उसमें ईगो का कॉन्सेप्ट आ जाता था। यू Hmm. अंडरस्टैंड? कि लाइक Hmm. ओ तुम खुद ही लगी हुई हो, तुमने किसी से पूछा नहीं, किसी बड़े छोटे से। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट काइंड ऑफ वो कंसिडर होता था कि लाइक ईगो है इंसान के अंदर। Hmm. ठीक है। तो ये जो इकबाल ने जब कॉन्सेप्ट दिया खुदी का, तो उसमें इकबाल ने, हजरत अल्लामा इकबाल, आई ऑलवेज से हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बिकॉज ही वाज अ सेंट एंड वली। तो उन्होंने खुदी के कॉन्सेप्ट को कहा कि दैट इज लुकिंग, नंबर वन, डिफाइनिंग योरसेल्फ हु यू आर। इकबाल ने क्या कहा खुदी को कि हु यू आर, हु आई एम, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु आई एम। It's not something that is ego. It is that in humility, आजी के साथ फाइंड आउट करना, मैं कौन हूं, मेरा दुनिया में मकसद क्या है। मौलाना रूम कहते हैं ना कि आई डिड नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड ऑन माय ओन अकॉर्ड, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। नीदर आई एम गोइंग टू गो, नीदर आई एम गोइंग टू गो विद माय ओन थिंकिंग। So whoever has brought me will take me home. Whoever has brought me, take me home. अब कौन लेके आया आपको और कौन लेके जाएगा? दुनिया में आने का मकसद ये है टू फाइंड आउट कि वो कौन है जिसने भेजा है और वो कौन है जिसके पास जाना है। तो when that is realized, that is the concept of खुदी। अब देखें, Yeah. it's all about wisdom। मैं आपको मौलाना रूम की मसनवी सुनाऊं? Yeah. Sure. I think he, because मैंने पहले भी बताया था, मैं ज्यादा पोएट्री पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन some concepts are those concepts जो just attract anybody and would lead them to maybe their next destination that is to come. So yeah, it can get really interesting. अच्छा, आज अब रियलाइजेशन की बात हुई तो मुझे ये मौलाना रूम की मसनवी याद आ गई। अच्छा, ये आपके लिए, आपको एक दो मसनवियां मैं आपको सुनाता हूँ, यू विल एंजॉय इट। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ खुद ही भी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ओके, पहली मसनवी में, ए सर्टेन मैन, कोई एक इंसान जंगल में जाता है, गोज इनटू द जंगल, और वहां पे वो एक परिंदा पकड़ लेता है। बड़ा खूबसूरत सा एक परिंदा होता है और उसको वो समहाउ द अदर पकड़ लेता है। तो वो जो परिंदा होता है, बड़ा खूबसूरत सा परिंदा होता है और छोटा सा परिंदा होता है, वो डर जाता है और वो घबरा जाता है। और ये इंसान सोचता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं अपने इसको पिंजरा एक बनाऊंगा और उस पिंजरे में डालूंगा। बात को गौर से सुनना है। जैसे रूह हमारी पिंजरे में है ना, इस दुनिया के पिंजरे में। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट इसको मैं पिंजरे में बंद करूंगा एंड मेरे बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। सो द बर्ड जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो ह्यूमन वॉइस में बर्ड कहता है कि सर, यू हैव ईटन सो मेनी काउज एंड गोट्स, दिस लिटिल बिट मीट ऑन माय बोन्स वोंट सेटिस्फाई यू ईदर। हाउ अबाउट कि अगर हम कोई डील कर लें आपस में, मैं आपको 3 नसीहतें करूं और आप मुझे छोड़ दें। सो वो जो बंदा होता है उसको देखता है और वो कहता है कि वाह, ये कैसे ह्यूमन वॉइस में बात कर रहा है। तो बर्ड कहता है कि अच्छा, पहली नसीहत मैं उस वक्त करूंगा जब मैं आपके हाथ, उल्टे हाथ पे बैठूंगा। दूसरी नसीहत करूंगा जब आप मुझे छोड़ेंगे और मैं दीवार पे बैठूंगा। और तीसरी नसीहत मैं उस वक्त करूंगा जब आप
जब मैं इस दरख्त की झाड़ियों के बीच में बैठ के आपसे बात करूंगा, राइट? तो वो शख्स कहता है कि नाउ, परिंदा तो खैर हम पकड़ ही लेता हूं मैं, वो तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, व्हाई नॉट, लेट्स एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो वो उसको अपने उल्टे हाथ पे बिठा देता है। तो बर्ड उसको पहला क्वेश्चन करता है विजडम का, क्योंकि 3 एडवाइस करनी है ना बर्ड ने उसको, 3 विजडम की चीजें बतानी है। तो बर्ड उसको कहता है कि डू नॉट बिलीव इन एब्सर्डिटी नो मैटर हु सेज इट। कोई शख्स भी फजूल बात करे, उस पर अमल नहीं करना और उसको सोचना नहीं है। कोई शख्स भी फजूल बात करे, उस पर अमल नहीं करना। ओके, साउंड्स वेरी गुड। द बर्ड गोज right onto the wall and sits on the wall. And the second nasiyat, Bert says that uh, uh, I'm just kind of forgetting that. This is very interesting that I forgot the second part of it, but I will remember it. So I mean, he goes onto the wall and he says that um, whatever जो भी मतलब आपके पास खजाना है वो आपका है और वो किसी और का नहीं है। जो भी कुछ है आपके पास वो आपका है और वो किसी और का नहीं है, राइट? ओके, साउंड्स गुड। और थर्ड पे बर्ड जो है वो चला जाता है उसमें, दरख्त में, और वो कहता है बाय द वे, मेरे पेट में एक 10 पर्ल्स का कॉइन है। 10 पर्ल्स के कॉइन जितना एक पर्ल है मेरे पेट में, एक मोती है बड़ा। और आपने जब मुझे पकड़ा था तो मुझे डर था कि कहीं आप मोती ना वो ले लें मेरा, और वो आपको बहुत अमीर बना सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट मी। तो वो जो इंसान है वो रोना शुरू कर देता है। और वो ज़ारो कतार रोता है, और जब वो सेंसेस में आता है तो बर्ड सेज, डिडंट आई टेल यू दैट इफ समवन टेल्स यू डू नॉट बिलीव इन एब्सर्डिटी नो मैटर हु सेज इट, उसकी बात पे आपने अमल नहीं करना। तो मेरा पेट तो इतना बड़ा है ही नहीं जिसके अंदर इतना पर्ल होता। और सेकेंडली, डिडंट आई टेल यू कि अगर कोई चीज लॉस्ट हो जाए जो आपके पास नहीं है, और उस पे यू डोंट हैव टू क्राई अबाउट इट बिकॉज वो आपकी थी नहीं। सो द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग इज same thing, that most of the time we are living in this world and understanding or looking at the absurdities of people, and we are taking their biases, right? ऐसा होता है ना, when you're taking the biases of people, आप बिलीव करते हो अच्छा वाकई ऐसा उसने कहा था, and you know that, or in your deeper in your thinking, that you understand that that's not right, but still we believe in that, and still we cry about something that is not ours. So that's Iqbal is saying कि ये जो दुनिया है, this is like a pathway, एक्चुअल जगह कोई और है, आप इस जगह पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। सो इट्स जस्ट लाइक एक इन है, एक सराय है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए आके रुके हैं, और उसके अंदर आपने थोड़ी देर के लिए, एंड यू आर accumulating so much. ओके, सो हाउ, अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि किस तरीके से ये काम मुश्किल है खुद ही का। तो कज़विन
ईरान का एक शहर था कज़विन, आज से 800 साल पहले। वहां पे एक बार्बर होता था जो टैटूज बनाया करता था। टैटू समझते हैं ना आप? Yeah, tattoos, yeah. राइट। सो वो टैटूज बनाया करता था। तो एक शख्स बार्बर के पास आया और उसने बार्बर से कहा कि सर, मेरी ये जो कमर है इसके ऊपर एक असेंडिंग लाइन आप बनाएं, एक शेर पीछे कमर पे ऐसे, जैसे वो मतलब आवाज लगा रहा होता ना, जैसे जैसे Yeah. वो क्या कहते हैं उसको, शाउट कर रहा होता है शेर, ऐसा शेर बनाना है आपने मेरी कमर पे, एट माई बैक। Hmm. रोरिंग, वो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, रोरिंग लाइन। सो मेक अ रोरिंग लाइन ऑन माई शोल्डर, एंड देन ही टर्न्स अराउंड और उसको कहता है बार्बर को, मेक श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लू इन दैट। सो द बार्बर सेज, वंडरफुल, आप फिक्र ना करें, आप जैसा शेर कहेंगे मैं वैसा बना दूंगा। सो हियर स्टार्ट्स द बार्बर। और वो नीडल, आपको पता है ना, जब टैटू बनाते हैं तो नीडल प्रिक करती है। Yeah, I've actually researched a lot about that. जी Because I जी, was researching कि ये इस्लाम में क्यों मना है. राइट Tattoos are not allowed. राइट। तो वो जब नीडल पिक प्रिक करती है, एक्चुअली टैटूज वर मेड एट सर्टेन टाइम्स फॉर गुड लक। सो दिस पर्सन इज आल्सो, I cannot hear you at all. I don't know what's wrong. कैन यू हियर मी नाउ? Yes. ओके। सो वो जो टैटू है, वो जब स्टार्ट करता है तो द गाय स्क्रीम्स। तो वो पूछता है कि व्हाट हैपेंड। सो वो कहता है, ओह देयर इज सो मच पेन। तो वो कहता है, व्हाट आर यू मेकिंग? सो वो कहता है, आई एम मेकिंग द बेली ऑफ टैटू। सो वो कहता है, डॉक लीव द बेली ऑफ द लॉइन दिस टाइम, अभी इसका पेट ना बनाओ। अगेन ही स्टार्ट्स द मेकिंग टैटू, और फिर नीडल प्रिक करती है। तो वो कहता है, व्हाट आर यू मेकिंग? आ सो मच पेन। वो कहता है कि आई एम मेकिंग द बैक ऑफ द लॉइन, यानी कमर बना रहा हूं, लॉइन की टेल वगैरह। तो कहता है कि दिस इज नॉट a good omen for me. It brings a bad luck to me, the back of a lion. So then the needle once more, once more the pain. तो वो कहता है, what are you making? कहता है, I am making the neck of the lion. He said, Doc, leave the neck this time. So वो जो बार्बर होता है वो नीडल फेंक देता है और एक साइड पे खड़ा हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि what type of a person you are? You want to make a lion, but you cannot take the pain. Now think of it. He wants a lion on his back, but he is not even willing to take a little bit of pain. Hmm. So he says that how can I make a lion like that when God has himself not made a lion like that, that does not have a back, that does not have a belly, that does not have a neck. खुदा ने कोई ऐसे शेर नहीं बनाया, तो मैं ऐसा शेर कैसे बना दूं? So the point is, the concept of khudi is not easy. And if someone has to get into the concept of khudi, they have to take a lot of pain. They have to take a lot of sufferings. They have to achieve
राइट? आज हमारे अंदर हम सेल्फ की बात करते हैं, हम ईगो की बात करते हैं, हमारी ईगो कितनी जल्दी फ्लेयर हो जाती है. सो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, और फिर बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो फेक लोग होते हैं, जो समझते हैं कि वो उनकी खुद ही तो बहुत अचीव कर गई है. आजकल आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, बाबा जी करंट लगा रहे हैं लोगों को, और लोग जो हैं वो गिर गिर के बेहोश हो रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहे हैं, उनकी खुद ही का पता नहीं क्या हो गया. तो एक मसनवी मौलाना रूम की है जिसमें एक चूहा जो है, चूहा एक कैमल जा रहा होता है, तो चूहा उसकी जो लीड नेक की रोप होती है उसको पकड़ के दोनों हाथों में आगे हीरो की तरह चलना शुरू कर देता है, दो टांगों पे, showing that चूहा is the leader of the camel, right? कैमल कहता है बेटा चलते रहो, मुझे भी तुम्हें एक सबक सिखाना है. वो चलते रहते हैं, चूहा लीडर समझ के आगे चलता रहता है. All of a sudden they come across a big river. The mouse is dumbfounded. Mouse is dumbfounded. He doesn't know what to do. So he looks at the river. तो कैमल कहता है, please step forward. You are my leader. You are my guide. अब वो चूहे को कुछ समझ नहीं आती, तो कैमल वॉक करके पानी के अंदर जाता है, कहता है इट्स ओनली माई नी डीप, ये तो मेरी सिर्फ टखनों तक आता है, इट्स ओनली माई नी डीप. तो चूहा कहता है कि योर नी इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ मी. तो कैमल कहता है देन परहैप्स यू शुड नॉट बी लीडिंग अ कैमल, you should be leading people like your own, right? So चूहा कहता है कि you know I had a long time I had a desire to cross this river. So the camel says that jump over my back, I am meant to take hundreds of you. So only the person, आपको बात बताने का मकसद ये है कि only the person who is a realized soul can lead हमारे जैसे चूहों को. हमारी खुद ही हम ये नहीं कह सकते कि we are the realized soul. There are so many great people in this world. बहुत सारे औलिया कराम इस दुनिया में हैं, सूफिया कराम इस दुनिया में हैं, और जो यहाँ किसी को नजर नहीं आते. But they are everywhere. They are hidden. They are the ones who lead us. जिनकी खुद ही जो है वो awakened होती है. Yes. So I just wanted to share some of these masnavis, although masnavis तो और भी बहुत सारी हैं मौलाना रूम की, but I just wanted to talk about this topic. तो आप बताएं कि कैसा आप, I don't know about the audience, but let's, you and me, we can talk that what have you understood from it, the concept? So I feel like कि because पहले भी like ये एक पाल का ही concept है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, so खुद को भी पहचानना है and is also part of खुद ही. So I feel like कि realizing your true potential and also like living up to your true functions as a living human being would lead you up to, you know, the true God. And because जब आप मतलब when you are lost and when, you know, वो जो एक मुकाम that was very like truly defined by Rama Akbar was कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या ग़िज़ा है. तो हाँ, तो I feel like to reach that level we need to first know who we are. Okay, I'll summarize this for you so that you can understand the concept. So the very first concept is that
एट सर्टेन टाइम जब इंसान इस दुनिया में आता है और उसके बाद उसका शऊर बेदार होता है, और देखें इंसान दुनिया में वो क्या कहते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो वाहिद स्पीशी है इस दुनिया में। बाकी दुनिया में और जितनी भी स्पीशीज हैं जानवरों की और सबकी, जिसमें इंसान सबसे लेट ग्रो अप करता है। अब आप अगर कहें कि 12 साल का ऊंट है और वो 12 साल का जो ऊंट है आप देखेंगे तो वो पूरा ऊंट बना होगा, तो आप कहेंगे मैं तो 12 साल की बच्ची हूं, ये तो पूरा ग्रोन अप एनिमल बन गया। द रीजन दैट वी ह्यूमंस टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होते 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 बहुत सारी चीजें हैं जो हमें 12 साल की उम्र में समझ भी नहीं आती। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप माशाल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं, ये डीप लेवल पे आप चीजों को समझ रही हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड डेवलप्स आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे याद है हम 20-20 साल के भी बच्चे बने होते थे घर में, यू अंडरस्टैंड। तो लोग कहते थे कि यार तुम अभी तक बच्चे बने हुए हो। कुछ लोग 35 साल के भी बच्चे बने होते हैं। समझ आ रही है? अब अक्सर मैं देखता हूँ आपको वीडियोस पे, तो जब आपके साथ लोग आके बात करते हैं और कहते हैं कि ओ आई हैव डन माय पीएचडी एंड आई हैव डन माय मास्टर्स एंड मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप क्या सोच रही होंगी कि आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट, एंड हियर यू आर Yeah. टॉकिंग like you're talking to me like little baby, Yes. you know. So this is what the concept is, that the when you start understanding and start realizing, so the पहली चीज ये है, जैसे मैंने कहा, खोल आंख जमीन देख फलक देख फिजा देख। तो खुद ही का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ये किसने बनाया है। आंख, ओपन योर, नॉट द 5 सेंसेस दैट यू हैव। देखो दुनिया में हमारे पास 5 सेंसेस हैं और इसी दुनिया में हमारे पास 5 और सेंसेस भी हैं जो कि फिजिकल नहीं है। यानी कोई इंसान जो है, जो रियलाइज सोल है, जैसे हम कहते हैं ना शहीद खाना खाते हैं, एज ए मुस्लिम आपका हमारा यकीन है ना कि वो जिंदा है, जी। उनको खुराक मिलती है, तो वो खाना कैसे खाते हैं? क्या वो 5 सेंसेस यूज करते हैं? राइट। सो दीज 5 सेंसेस आर डिफरेंट 5 सेंसेस जो कि सूफी मास्टर के पास होती है या किसी भी रियलाइज सोल के पास होती है। वो जो दुनिया में 5 सेंसेस हैं उनके पैरेलल जो 5 हिडन सेंसेस हैं, आपने उनको उजागर करना है। तो वो कहता है खोल आंख, अपनी आइज को खोल, जमीन देख, आसमान को देख, किसने बनाया है, जमीन किसने बनाई है। और वो ये कह रहा है कि अपनी अंदर की आंख खोल, बाहर की आंख तो तेरी खुली हुई है पिछले 15 साल से, यू अंडरस्टैंड। बाहर, Yes. सो हम देखो ना रहीन, वी ऑलवेज लुक आउटसाइड। ये 5 सेंसेस बाहर की तरफ हैं, 5 सेंसेस अंदर की तरफ नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए दी है ना हमें, ये जिंदा रहने के लिए हमें 5 सेंसेस दिए हैं, इसलिए ये बाहर की तरफ है। लेकिन अंदर के लिए 5 सेंसेस डिफरेंट है। ठीक है। राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकबाल, जहां से इकबाल स्टार्ट करता है कि आपने अपनी रियलाइजेशन करनी है। और जैसे हजरत इब्राहिम ने बहुत सारे बुतों को तोड़ा और फिर कहा ये चांद भी मेरा खुदा नहीं है, ये सूरज भी नहीं है, दिस समथिंग एल्स,
ये जो समथिंग एल्स था, ये वो कॉन्सेप्ट है सेकंड लेवल पे जो हजरत अल्लामा इकबाल कह रहे हैं खुदी का। और यहां पे हजरत इब्राहिम एक दफा फिर अल्लाह ताला से कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, सेकंड, जब वो सेकंड लेवल पे थे हजरत इब्राहिम, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कि मुझे समझ तो आ गई है कि ये जो बर्ड्स हैं और ये सारे जो हैं, तुम आप मार के जिंदा करते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट हैपन, कैसे आप जिंदा करेंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप कुछ पिजन्स लें, उनको अपने साथ मानूस करें और उसके बाद उनको जिबा करके उनके पीसेस सारे पहाड़ों पे फेंक दें, एंड देन यू कॉल देम जस्ट लाइक द वे यू कॉल देम, एंड दे केम फ्लाइंग टू हिम। तो फिर क्या होता है कि वो जो है, इकबाल कहते हैं कि हो अगर खुद नगरो खुद गरो खुदगीर खुदी, यानी खुदी जब इस मकाम पे चली जाए, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। You understand? Yeah, So that is really deep. that is really deep. And that is what Quran says, मुतु कबला अंता मुतु, मौत से पहले मर जाना। बहरहाल ये आपके साथ किसी और, जब आप थोड़े बड़े होंगे तो फिर सेशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बात है वो आपको अंडरस्टैंड हुई? I actually understood it. And आपको पता है, like because कल जो है मैं अपने बाबा के साथ ना डिस्कस करी थी खुद ही, because of course like I think मुझे ना इस दुनिया में आए हुए 12 साल हो गए हैं. Most of the people again like as you said, उनको they're at least like जो least level है, they're at least 3 times my age more and or usually more. तो उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है. अब मेरी भी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट. सो आई ट्राइड सिटिंग डाउन विद माय डैड एंड देन डिस्कसिंग, राइट? सो एंड वी बेसिकली बिकॉज अब्बा एयरफोर्स में तो जहां भी हम जाते हैं ना, वी वुड सी एन ईगल, ऑलवेज एन ईगल. जहां भी मैं रहती हूँ, इफ आई वॉक a few minutes I'll reach this huge gigantic eagle. तो ईगल्स को देख देख के बड़ी हुई हूँ. एंड आई फील लाइक जिस तरह लाइक इकबाल, क्योंकि ही वांटेड के जो मुसलमान हो वो दे काइंड ऑफ लाइक ग्रो अप टू बी ईगल्स, लाइक उनकी जो क्वालिटीज हैं ये नहीं कि मतलब फेदर्स के साथ एंड एवरीथिंग. एंड इट्स लाइक बीइंग विजनरी, बीइंग an observer, not just because. And also I feel like the two most important qualities that are there in an eagle is कि first कि वो कहीं घर नहीं बना लेता, मतलब it's not कि भाई moving around places, but it's like अगर आप एक लेवल में आ गए, अगर लेट्स से जिस तरह पहले सर ने बोला था कि मैं अभी 25 हूँ इन पाकिस्तान, तो ये नहीं करेंगे कि बस मैं 25 हो गई हूँ, बस अब मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं करना. I would have to be like maybe in Asia, then be in the world, and then फिर number one in the world. So एक जगह पे नहीं रहना और किसी और लाइक के मारे, मतलब जो किसी और का शिकार है, किसी और के मारे हुए शिकार है, वो कभी नहीं खाना. Make your own thing. Make something that is of your own, not just make up on somebody. दूसरे की चीज के ऊपर नहीं कभी बनाना. लाइक डू योर ओन थिंग. सो अब आई मैं फील लाइक आपको दीज जस्ट आर होल्ड ऑन, द होल्ड ऑन, क्वालिटीज. होल्ड ऑन. मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और, शाही का जहां और है और गिद्ध का जहां और है. गिद्ध किसी का मारा हुआ खाता है, शाही अपना शिकार करता है. बात समझ आई?
Take it. Okay. So I think having said that, हमारा टाइम भी हो गया है और हमें पता नहीं लगा 1 घंटा गुजर गया है. Take it. And it was such a wonderful time with you and such a wonderful learning and sharing experience and understanding experience with you. I hope I made some sense out of this whole concept of khudi and शायद के वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. It was really amazing having you here. Not just like as a guest, like usually I would just have guests come in and say, thank you so much for coming and stuff. But I feel like yes, I actually have learned a lot. Like today, I have because again concepts and this concept is pretty complex. Again, like, but बात ये होती है कि for understanding and to start that process of realization of who you are. So yeah. So I feel like yes, I have learned a lot today, and it was actually really, really amazing having you here, not just as a guest, but like as a mentor and as like a teacher on the session. I'm humble. Thank you so much, and thank you so much for the audience for watching because um, the numbers kept changing and changing of the audience, and yeah, thank you so much for coming and being Yeah, here with sure. us. And I hope that you guys had something to learn and you guys learned something new. And if you did, please comment down below specifically if you want to share And what you I'll learned. welcome to answer the questions later on in a second session or whenever. And I would also like to have some more sessions with you on some personal development and बच्चों को मैं goal settings के बारे में बताना चाहता हूँ. How to achieve goals and how to develop their self. ये एक मैं training करता हूँ, transformational training, and I would like to do that too. So inshallah, when आप बहुत busy होते हैं, तो और मेरे पास यहाँ पे अभी I'm planning to launch my training. I am working on it. तो meanwhile, जब भी आपके पास कभी time हो मेरे लिए, तो you can just let me know and we can do a session. Yes, sure. I would love to. Thank you so much for coming. Thank you so much for the audience for watching. And inshallah, we'll come again with another session. And yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for having me.